حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سے ملاقات کا واقعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب آپ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو کیا آپ نے اللہ کا چہرہ مبارک دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب میں نے اللہ کو دیکھا تو میرا سانس بند ہو گیا اور مجھے دوبارہ زندہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان سدرۃ المنتہا، جنت و جہنم اور جہاں تک اللہ نے چاہا ان مقامات کی سیر کرائے گی۔ اس سفر کو اسرا و معراج کہتے ہیں۔ معراج کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے اور کئی اقوال کتب میں مذکور ہے۔ معراج کے واقعے کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آرام فرما رہے تھے کہ یکایک چھت پٹے اور جبرائیل امین اترے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب عطر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصی پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کے ہجوم میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے اور آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا، نیز اللہ جل شانہ کی تجلیات و انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے بارگاہ اقدس میں پہنچے، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اس موقع پر نماز فرض کی گئی۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے۔ وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قابل مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ سفر معراج کا اجمالی خاکہ تھا۔ ناظرین، معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہترین نشانی میں سے ایک نشانی ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا، جو جشن زدر میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس ملاقات میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے سے پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات تھی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، آج کی رات میرا ذکر نہ کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو، آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو، جنت کو خوب سجاؤ، میری فرما برداری کا کلے اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دے کہ وہ سور کو پھونکنا کوئی دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کوئی دیر کے لیے روح کو قبض کرنا بند کر دے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کے درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خندہ بری کی روح سے کہہ دو کہ خون سج دھج کر جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائے، اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑی ہوں کہ یوں معلوم ہو جیسے سب بستہ کھڑی ہیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل، اپنے 70,000 فرشتے لے کر جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہیں ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات، دیکھی بھی نہ ہوگی، اور دیکھنا تو دور کی بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کے 27ویں شب کس قدر پرسوز ہے، مطلب بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔
रात ऐसा ऐसा कैफो निशात की मस्ती में मस्त होती जा रही है। सितारे पूरी आबोताब के साथ झिलमिला रहे हैं। पूरी दुनिया पर सकूत और खामोशी का आलम तारी है। निस शब गुजरने को है कि यकायक आसमानों के दरवाजे खुलते हैं। अनवार और तजल्लियात के जलवे समेटे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के जुर्मट में जनती बुराक लिए आसमान की बुलंदियों से उतरकर हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ लाते हैं, जहाँ पे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ख्वाब हैं। आंखें बंद किए दिल बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाथ बांधे खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज देकर जगाया तो बेअदबी हो जाएगी। फिक्रमंद है कि मेराज के दुल्हे को कैसे बेदार किया जाए। उस वक्त हुक्म रब्बी होता है, ऐ मेरे जिब्राइल, मेरे महबूब के कदमों को चूम ले ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आंख खुल जाए। उसी दिन के वास्ते मैंने तुझे काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूरी होंठ महबूब दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव से मस कर दिए। वह मंजर भी किस कदर हसीन होगा जब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फख्र के नात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया होगा। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के होंठों की ठंडक पाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं, ऐ जिब्राइल कैसे आना हुआ? अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदाए बुजुर्ग बरदर की तरफ से बुलावे का पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का शौक रखता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तशरीफ ले चलिए। जमीन से लेकर आसमानों तक सारे गुजरगाहों पर मुश्ताक के दीद का हजूम हाथ बांधे खड़ा है। मेराज नबूवत में यह बात दर्ज है। चुनाचा आपने सफर की तैयारी शुरू की। इस मौके पर हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने आपका सीना मुबारक चाक किया और दिल को खोल दिया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मेरे पास एक आने वाला आया और उसने मेरा सीना चाक किया। सीना चाक करने के बाद मेरा दिल निकाला, फिर मेरे पास सोने का एक तश लाया गया जो ईमान और हिकमत से लबरेज था। उसके बाद मेरे दिल को धोया गया, फिर वह ईमान और हिकमत से लबरेज हो गया। उसके बाद उस कल्ब को वापस उसी जगह पर रख दिया गया। बुखारी शरीफ की जल्द नंबर अव्वल में सफर नंबर 568 पर यह बात दर्ज है। मुस्लिम शरीफ की बात की जाए तो जल्द अव्वल सफर नंबर 92 पर यह बात दर्ज है कि मुस्लिम शरीफ में है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सीना साफ करने के बाद कल्ब मुबारक को जमजम के पानी से धोया और सीना मुबारक में रखकर सीना बंद कर दिया। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कल्ब हर किस्म की कज्जी से पाक और बेऐब है। उसमें दो आंखें हैं जो देखती हैं, दो कान हैं जो सुनते हैं। यह फतह अल बारी की रिवायत है। जल्द नंबर 13 सफर नंबर 610 पर सीना अक्तस के चाक के जाने में कई हिकमतें हैं, जिनमें एक हिकमत यह है कि कल्बे अतर में ऐसी कुव्वत कुदसिया शामिल हो जाए जैसे आसमान पर तशरीफ ले जाने और आलम समावात का मुशाहदा करने बिलखसूस दीदार इलाही करने में कोई दिक्कत और दुश्वारी पेश न आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर पर इमामा बांध दिया गया। अल्लामा काज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शब मिराज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इमामा शरीफ पहनाया गया वो इमामा मुबारक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 7000 साल पहले तैयार किया गया था। 40,000 मलाइका उसकी ताज़ीम और तकरीम के लिए उसके इर्द गिर्द खड़े थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सरवर कुरैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर की एक चादर पहनाई, जमरद की नालैन मुबारक पाँव में ज़ेबतान फरमाई, याकूत का कमर बांधा। ये भी मेराजुन नबूवत सफर नंबर 601 पर दर्ज है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुर्राक का हुलिया बयान करते हुए इरशाद फरमाया, सीना सुर्ख याकूत की माने चमक रहा था। उसके पुष्प पर बिजली की गूंज थी। टांगे दुम मरजान, सर और उसकी गर्दन याकूत से बनाई गई थी। बहती जैन उस पर कसी हुई थी, जिसके साथ सुर्ख याकूत के 2 रकाब आवेजा थे। उसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। चंद लम्हों के बाद वो वक्त भी आ गया कि सरवर कुनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ फरमा हुए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रकाब थाम ली, हजरत मीकाईल ने लगाम पकड़ ली, हजरत इसराफील ने ज़ैन को संभाला। हजरत इमाम काज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेराज की रात 80,000 फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ और 80,000 बाएं तरफ थे। फिजा फरिश्तों के दरूद और सलाम की सदाओं से गूंज उठी और आका नामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद और सलाम की गूंज में सफर मेराज का आगाज फरमाते हैं। इस वाक़या को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया
कि वो ज़ात नुक्स और कमजोरी से पाक है, जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब और मुकर्रम बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गए, जिसके गिर्द नवा को हमने बाबरकत बना दिया है, ताकि हम उस बंदा कामल को अपनी निशानियां दिखाएं। सूरत बनी इसराइल की इस आयत का तर्जुमा भी बयान किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत शान और शौकत से मलाइका के जुलूस में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना होते हैं। ये गाड़ी किस कदर दिल नवाज थी कि जब मकान से ला मकान तक नूर ही नूर फैला हुआ था। सवारी भी नूर तो सवार भी नूर, बाराती भी नूर तो दुल्हा भी नूर, मेजबान भी नूर तो मेहमान भी नूर। नूरियों की ये नूरी बारात फलक पोस पहाड़ों, बयाबान रेगिस्तानों, घने जंगलों, चीटियल मैदान और सरसब्ज शादाब वादियों पर पुरखतर वीरानों पर सफर करते हुए वादी बसा में जा पहुंचती है, जहाँ बेशुमार दरख्त है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि हुजूर यहाँ उतर कर 2 रकात नमाज नफिल अदा कीजिए, ये आपकी हिजरत का मदीना तैयबा है। नफिल की अदायगी के बाद फिर सफर शुरू होता है। रास्ते में एक सुर्ख टीला आता है, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात में सुर्ख टीले से गुजरा तो मैंने देखा कि वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है और वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। फिर देखते ही देखते बैतुल मुकद्दस भी आ गया, जहाँ कुर्सियों का जमे गफीर सलामी के लिए मौजूद है, उलमा खुशामदीद कहने के लिए और तकरीबन 1,24,000 अंबिया मुरसलीन इस्तकबाल के लिए बेचैन और बेकरार खड़े थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर तशरीफ फरमा हुए, जिसे बाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक पत्थर के पास है जो उस जगह मौजूद था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर में अपनी उंगली मारकर उसमें सुराख कर दिया और बुराक को उससे बांध दिया। ये तफसीर इब्ने कसीर की जल्द नंबर 3 सफा नंबर 7 पर दर्ज है। आफ्ताब नबूवत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं। साइने हरम में फलक तक नूर ही नूर छाया हुआ है, सितारे मान पड़ चुके हैं, कुर्सी सलामी दे रहे हैं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अजान दे रहे हैं, तमाम अंबिया और रसूल सफ दर सफ खड़े हो रहे हैं। जब सफें बन चुकी तो इमाम और अंबिया फखरे दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाने तशरीफ लाते हैं। तमाम अंबिया और रसूल इमाम और अंबिया की इब्तिदा में 2 रकात नमाज अदा करके अपनी नियाजमंदी का ऐलान करते हैं। मलाइका और अंबिया सब के सब सर तस्लीम खाम किए हुए खड़े हैं। बैतुल मुकद्दस में आज तक ऐसा दिल नवाज मंजर और रूह परवर समा नहीं देखा। वहाँ से अजमत और रिफत के परचम फिर बुलंद होने शुरू होते हैं। दरूद सलाम से फिजा एक मरतबा फिर गूंज उठती है। सरवर कुनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी मखलूक के जरूर में आसमान की तरफ रवाना होते हैं और यहाँ से फिर वो वाक़या मेराज शुरू होता है। यहाँ से फिर वो मामला शुरू होता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मुझे ऊपर ले जाया गया। बुर्राक की रफ्तार का ये आलम था, जहाँ निगाह की इंतहा होती वहाँ बुराक का पहला कदम होता। फौरन ही पहला आसमान आ गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया। दरबान ने पूछा कौन है? जवाब दिया जिब्राइल। तो दरबान ने पूछा तुम्हारे साथ कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरबान ने कहा मरहबा मरहबा, दरवाजा उन्हीं के लिए खोला जाएगा। चुनाचा दरवाजा खोला गया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। उन्हें बताया गया कि ये आपके जलील कद फर्जंद है, खातमुल मुरसलीन है, यही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दादा जान कहकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में सलाम अर्शाद फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब भी अर्ज किया और अपने अजीम फर्जंद को दुआओं से भी नवाजा। उसके बाद मेहमान अर्श हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान की तरफ उठाया गया। पहले आसमान की तरह बवाब ने दूसरे आसमान का दरवाजा खोला। यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इस यादगार मुलाकात और आसमान के मलकूती मुशाहिदात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरे आसमान की तरफ उठाया गया। तीसरे आसमान पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से कराई गई। तीसरे आसमान के मुशाहिदात नूरानी के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चौथे आसमान पर पहुंचाया गया। चौथे आसमान पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से कराई गई। इस तरह हजरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मिराज तय करते हुए 5वें आसमान पर पहुंचे तो वहाँ हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से हुई।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुकद्दस आंखें अश्कबार हो गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और रिफत को देखकर रश के आंसू छलक पड़े। आपकी जुबान अख्तर से बेअख्तियार निकला कि खुदाए बुजुर्ग बरतर के ये वो बरगुज़ीदा रसूल है जिनकी उम्मत को मेरी उम्मत पर शर्फ अता किया गया। मेरी उम्मत पर जिसे बुजुर्गी अता हुई ये वही रसूल बरहक है जिनकी उम्मत को मेरी उम्मत के मुकाबले में कसरत के साथ जन्नत में दाखिल किया गया। मेहमान ज़ी हशर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तख्लीक में वाहिद हस्ती हैं, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ सिदरतुल मुंतहा तक सफर किया। इस मकाम पर अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम को 5 नमाजों का तोहफा इनायत फरमाया। मेराज का वाक़या जिस रात पेश आया उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर मुकीम थे। आपने ये बात लोगों को बताई तो सब ने उसे मानने से इनकार कर दिया और मुशरिकीन ताना देने लगे कि रसूलुल्लाह रातों रात आसमान पर गए हैं। सब ने तरदीद की और जब लोगों ने हजरत अबू बकर को इस वाक़े के मुतालिक आगाह किया तो हजरत अबू बकर ने फौरन तस्दीक करते हुए कहा, क्या ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है? लोगों ने कहा, हाँ बिल्कुल। अबू बकर ने कहा, रसूल अकरम ने बताई है तो फिर ये सच है। हजरत अबू बकर की इस बात ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मुतासिर किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को इससे सिद्दीक का लक़ब दिया। मक्का का एक शख्स शाम और फलस्तीन ज्यादा सफर किया करता था। वो आया और बोला, अगर आप वाकई रातों रात मस्जिद अक्सा और फिर आसमानों में गए हैं तो मुझे मस्जिद अक्सा का पता है। मैं आपसे चंद सवालात पूछता हूँ, आप जवाब दें। फिर उस शख्स ने रसूल अकरम से मस्जिद अक्सा और उसके खिद खाल के मुतालिक बेशुमार सवालात किए और रसूल अकरम ने सब के सब ठीक ठाक जवाब दिए। उस शख्स ने रसूलुल्लाह के तमाम जवाबात को दुरुस्त करार दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से पर्दे में बात करने का शर्फ हासिल किया जो और किसी को हासिल नहीं हुआ। कायनात की इस अफसल तरीन रात में अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजें बतौर तोहफा दी, जिनकी तादाद बाद में कम करके 5 कर दी गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज को अल्लाह ताला का दीदार किया है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार इलाही करने का सबूत कुरान करीम से मिलता है। कुरान करीम की जिस आयत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार इलाही का इनकार किया जाता है, लोगों की जबरदस्ती है। यही हालत हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत का है। दोनों पर मुख्तसर गौर किया जाता है। कुरान और सुन्नत से जो चीज साबित है वह दीदार खुदाबंदी और नफी में पेश की जाने वाली आयत में है आंखों के अदराक की नफी। हालांकि देखने में और इदराक में फर्क है। अरशाद खुदाबंदी है, निगाहें उसका इहाता नहीं कर सकती और वो सब निगाहों का इहाता किए हुए है और वो बड़ा बारीक बीन, बड़ा बाखबर है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर में लिखते हैं, आयत का मतलब है कि तमाम आंखें उसका इदराक नहीं कर सकती। इसका फायदा ये है कि बाज आंखें देख सकती हैं। देखी जाने वाली चीज की जब हद और इंतहा हो और देखने वाले नजर तमाम हदूद, अतराफ और इंतहाओं को घेर ले तो गोया उस नजर ने उस चीज को घेर लिया। इस देखने को अदराक कहा जाता है। लेकिन जब नजर देखी जाने वाली चीज के अतराफ का अहाता ना करे तो उस देखने का नाम इदराक नहीं होता। खुलासा ये है कि कुरान की आयत से और उसे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कौल से दीदार इलाही की नफी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं होती। इस आयत का मतलब है कि तमाम आंखें उसको नहीं देख सकती, या ये कि आंखें अल्लाह का इहाता नहीं कर सकती। और जाहिर है कि देखना और है, इहाता करना और है। नतीजा ये है कि बाज आंखें दुनिया में भी अल्लाह को देख सकती हैं और यकीनन वो बाज आंखें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की हैं। अल्लामा कुर्तुबी मजीद लिखते हैं, अब्दुल्लाह बिन हारिस के हजरत इब्न अब्बास और इब्न काब से मुलाकात हुई तो हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हम बनी हाशिम तो कहते हैं कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को दोबारा देखा है। फिर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम्हें इस पर ताज्जुब है कि दोस्ती हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, कलाम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए और दीदार इलाही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साबित है। इस पर हजरत काब ने अल्लाह अकबर कहा, यहाँ तक के पहाड़ गूंज उठे। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक ने बयान किया, हसन बसरी अल्लाह की कसम उठाकर कहते हैं, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है। मरवान ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा? उन्होंने फरमाया, हाँ। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों से अल्लाह को देखा है, यहाँ तक कि उनका सांस बंद हो गया।
नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन का पैरोकार बनाए और हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अगले वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।